उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने की मांग, देश के वीर सपूत जनरल विपिन रावत भारत रत्न से हो सम्मानित। हरीश रावत ने कहा, भारत माता के वीर सपूत को भारत रत्न मिलना चाहिए। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 10 नए कोरोना संक्रमित, किसी भी मरीज की नहीं हुई मौत। 27 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सैकड़ों मामलों की संख्या 156 तक पहुंची। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर हुआ शुरू। पर्यटक स्थलों के होटल, गेस्ट हाउस की बुकिंग लगभग फुल हो गई है। पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। इस वक्त उत्तराखंड में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग परेड चल रही है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। We gather here today when the nation is yet to come out of the shock of the untimely demise of General Vipin Rawat, the Chief of Defence Staff. As you know, Gurudhar Singh Suri, General Rawat's wife, Srimati Madhurika Rawat, were also killed in the job of dress. General Rawat was an extraordinary military leader, and his death creates a void that cannot be filled. Uttarakhand was his home and he was trained at the Indian Military Academy. Here he was awarded the Sword of Honor for his exceptional skills. But for the tragedy, he would have been among us here today, looking at the passing out parade with delight and pride for the cadets. General Rawat added to the glory of the IM, which is an institution with an inspiring tradition. Before him, Field Marshal K.M. Cariappa, Field Marshal Sam Maneksha, and many other extraordinary warriors and strategists began their journey here as young cadets and potential leaders. Some of them laid down their lives for the safety and honor of our nation. The IMA is acclaimed worldwide for its nearly 9 decades of history and heritage. Its buildings and sprawling campus are impressive indeed. It gives me pleasure to see before me the batch of 387 gentlemen cadets who would shortly embark on their journey of a life characterized by valor and wisdom. I am sure they will carry forward the rich legacy of this academy. I appreciate the immaculate turnout and an impressive display of skill. This parade comprises cadets from all parts of India and from diverse communities, and also from 10 friendly foreign countries. This is indeed a true manifestation of our unity and also of our plural society. Gentlemen cadets, your training here equips you to face the challenges that await you. As commissioned officers, you will be expected to blend knowledge, skills and professional application. You must internalize the Chetwood motto inscribed in your academy. All of you know the motto very well. Yet, I find it so good that I would like to repeat it for the benefit of all the cadets passing out today. The motto reads, and I quote, "The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time. The welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time." Gentlemen cadets, you will have the authority to lead men into battle. At the same time, you will also be expected to uphold the admiration
and trust that your uniform rose amongst fellow countrymen. You must always remain mindful that your actions will influence the outcome of military operations. Your decisions will have an impact on the lives of men under your command, and your dedication to services will have a multifaceted impact on our country. The challenges that our great nation faces today are defined by a complex security environment at the regional and global level. You must therefore keep in mind that physical and mental toughness alone will not equip you to tackle modern day threats to the country. As military leaders, you will have to develop a strategic mindset, cultivate an adaptive temperament, and acquire the mental resilience essential to hone the skills required for military leaders. You must be prepared to deal with the unexpected challenges that the profession of arms shall present before you at various junctures of your service. Gentlemen cadets, advancement in technology has often been driven by military dynamics. The battlefield today presents multi-dimensional situations. Armed forces across the world are heavily reliant on use of technology to deter or defeat the enemy's fighting capability. As modern military leaders, you must embrace this technological shift and understand the seamless synergy required between men and machines. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुन रहे थे आप। दरअसल भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ ही आज भारतीय थल सेना को 319 युवा जाबाजों की टोली आज मिल जाएगी। इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि मित्र देशों के 68 कैंडिडेट भी आज पास आउट होने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की समीक्षा के लिए पहुंचे और पास आउट हो रहे जेंटलमैन कैंडिडेटों से सलामी भी उनकी तरफ से ली गई है और कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बेहद ही सादगी और सुरक्षा के साथ इस परेड को किया गया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पहुंचे। हालांकि सीडीएस विपिन रावत को भी उनके साथ पहुंचना था, लेकिन एक हादसे के शिकार हो जाते हैं। दरअसल नियति को कुछ और ही मंजूर होता है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त आईएमए में मौजूद हैं और पासिंग आउट परेड में बतौर निरीक्षक के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पहुंचे। दरअसल 1971 में भारत और पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर आज बेहद ही शानदार और अच्छे तरीके से इस परेड को यादगार बनाने के लिए तैयारियां कई दिन पहले से शुरू कर दी गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पहुंचे हैं, संबोधन उनकी तरफ से किया गया, सलामी उनकी तरफ से ली गई। तो आज भारतीय थल सेना को 319 युवा जाबाज की टोली मिल जाएगी और साथ ही साथ मित्र देशों को 68 कैडेट भी यहाँ से पास आउट होने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस परेड में पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां मौजूद है और बेहद ही शानदार तरीके से ये परेड फिलहाल हो रही है। थल सेना को आज 319 युवा जाबाज मिल जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षक अधिकारी परेड में शामिल हुए। अब बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अकेले उत्तराखंड से 43 बहादुर जाबाज आज देश को मिलने जा रहे हैं। चलिए आगे रुक करते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है सामने से। आज सीडीएस विपिन रावत का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज हरिद्वार में सीडीएस विपिन रावत का अस्थि विसर्जन हो रहा है। गंगा में प्रभावित हो जाएंगी सीडीएस और उनकी पत्नी की अस्थियां लेकर हरिद्वार रवाना हो गई हैं उनकी दोनों ही बेटियां। दरअसल सीडीएस रावत की दोनों ही बेटियां हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी हैं। अस्थि विसर्जन के दौरान रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है बीते 2 दिन पहले का अगर जिक्र करें तो उस हादसे में सीडीएस विपिन रावत उनकी पत्नी का निधन हो जाता है। उनके साथ ही तमाम 11 और सेना के अधिकारी जिनका निधन हो गया है।
बीते दिन सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार हो चुका है। देश भर में शोक की लहर और श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई और बेहद ही नम आंखों से उन्हें अलविदा कहा गया। अंतिम संस्कार के वक्त 17 तोपों से सलामी दी गई उन्हें और वो आखिरी सलामी देश हमेशा याद रखेगा। और आज हरिद्वार में सीडीएस विपिन रावत का अस्थि विसर्जन होना है। चंचल तोमर मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। चंचल, सीडीएस विपिन रावत का अस्थि विसर्जन होना है हरिद्वार में आज, क्या अपडेट आपको मिल रहा है इस वक्त? जो है सीडीएस जो विपिन रावत है और उनकी पत्नी जो प्लेन हादसे में उनकी दुर्घटना में शहीद हो गए थे, उनकी अस्थियां आज जो है हरिद्वार आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में उनका पैतृक गांव भी था, उसको लेकर और जो है काफी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो उत्तराखंड के कुछ स्थानीय वहाँ के गाँव के आसपास के जो लोग थे वो भी उनके जो है जान के जो रिश्तेदार वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और उनकी जो अस्थियां हैं जो है वो पहुंचने वाली है, कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाली है। और सेना के सारे जवान और बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर वही बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ पर पहुंचेंगे, जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो। और सबसे बड़ी बात है मोनिका, जो तमाम जो जितने भी संगठन है या दल हैं वो सारे जो एकजुट होकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी तरीके से जो है उनकी प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई हुई है, क्योंकि कुछ ऐसी जो है भीड़ भाड़ ना हो। और जो यहाँ पर हरिद्वार में जो मेले को लेकर भीड़ रहती है तो उसके लिए रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। और जो है कुछ ही क्षण में जो है विपिन रावत के अस्थियां यहाँ हरिद्वार पहुंचने वाली हैं। और उसके बाद जो है विधि विधान से गंगा सभा तो सारी व्यवस्था देखी हुई है, विधि विधान से उनके जो है शुरू किया जाएगा। जी मोनिका। चंचल, उत्तराखंड के बेटे थे सीडीएस विपिन रावत, क्या माहौल आज उत्तराखंड में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बता दें जिस तरीके से जो दुर्घटना हुई थी बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो पैतृक गाँव देश में दुनिया में उसकी अच्छी समिति और लोग जो जाने वाले ट्विटर पे मुझे जैसे उनकी संदेशा भेज रहे हैं, उससे लगता है मैं कि वो अभी भी इस दुनिया में नहीं। लेकिन जो है जैसे जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद जो है उत्तराखंड में काफी रोज देखने को मिला था। 3 दिन का जो है राज्य जो बनाई गई थी, जितनी बड़े प्रोग्राम थे उनको स्थगित कर दिया गया था। और जो है यहाँ पर जो है तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत का बीते दिन अंतिम संस्कार हुआ और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली उनके आवास पर पहुंचे। बेहद ही नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरें आप देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। उन्होंने दिवंगत दंपति के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में मुख्यमंत्री दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी सादगी, सहजता हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। देश की सेना और सीमाओं की रक्षा के लिए जिस तरीके से विपिन रावत का योगदान रहा है, इतिहास में दर्ज रहेगा। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से मांग की गई है। दरअसल हरीश रावत की तरफ से मांग की गई है कि देश के वीर सपूत जनरल विपिन रावत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। भारत माता के इस वीर सपूत को भारत रत्न मिलना चाहिए, हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। ये सम्मान एक विशेष समारोह कर दिया जाना चाहिए सीडीएस विपिन रावत को, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो उनका योगदान रहा देश में सुरक्षा में, देश की जिम्मेदारी जिस तरीके से उन्होंने संभाली, उनके उपलब्धियों को देखते हुए और उनके हौसलों को, उनके शौर्य पराक्रम को देखते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से अब मांग की जा रही है कि उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए भारत रत्न से। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उन्हें हर कोई आज याद कर रहा है। हरीश रावत की तरफ से मांग की गई है उन्हें भारत रत्न देने की। सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से सपूत जनरल विपिन रावत जो अब हमारे बीच नहीं रही हैं, तो उनके लिए अब मांग उठने लगी है कि उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उन्होंने मांग उठाई है कि उनको सम्मान
भारत सम्मान रत्न देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश की सेवा की है और उत्तराखंड का लाल हमने खो दिया है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी वीरता है उसको याद किया जा रहा है। आज भी उनको सब याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा देश एक शोक में डूबा हुआ है, जिसको लेकर अब मांग उठने लगी है भारत रत्न की। यानी कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि उनको भारत रत्न सम्मान देना चाहिए और एक सम्मान समारोह करके उनको ये सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तमाम जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार उन्होंने शहादत दी है और जिस तरीके से उन्होंने दुश्मनों को कहीं ना कहीं घुटने टिकवाए थे, तो उसको देखते हुए उनको एक सम्मान रत्न देने की बात लगातार उठ रही है। और धनराज, जिस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत का सफर रहा है, उनका योगदान रहा है, कैसे बयां करेंगे, क्योंकि शब्दों में बयां कर पाना तो मुश्किल है। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरह का उनका योगदान रहा है देश के लिए, वो शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए हैं और तमाम आपने देखा होगा कि जब पुलवामा हमला हुआ था तो उन्हीं की देन थी कि जब स्ट्राइक की गई थी तो उन्हीं के नेतृत्व में वो स्ट्राइक हुई थी और तमाम योगदान उत्तराखंड को भी उनका लगातार मिलता रहा है। तमाम जो नेता है, बड़े नेता है, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या फिर अन्य नेता हो, सभी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ उन्होंने जीवन बिताया और किस तरीके से उनका मार्गदर्शन लगातार उत्तराखंड को मिलता रहा है। क्योंकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में जानकारी के मुताबिक वन अनुसंधान संस्थान मिलने जा रहा है, एक बार फिर खुलने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो पर्यटकों के लिए एक बार फिर खुलेगा वन अनुसंधान संस्थान। 13 दिसंबर से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है और अब पर्यटक FRI का दीदार कर सकते हैं। आपको बता दें कि 200 लोगों को परिसर में आने की अनुमति होगी। तो कोरोना वायरस को देखते हुए जिस तरीके से नया वेरिएंट सामने आया है, उसके मद्देनजर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए जाएंगे। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एंट्री होगी। तो वन अनुसंधान संस्थान पर्यटकों के लिए फिर खुलने जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में 24 घंटे में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई, ये राहत भरी खबर है। इस बीच 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 27 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें वापस घर भी भेजा गया है। तो सक्रिय मामलों की संख्या 156 है फिलहाल। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले जिस तरीके से सामने आए हैं, हालात फिलहाल बेहद सामान्य हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, 24 घंटे के अंदर के 10 नए संक्रमित मामले हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और सक्रिय मामले फिलहाल 156 है। तो अब जिस तरीके से नया वेरिएंट पैर पसार रहा है अलग अलग राज्यों में, तो उत्तराखंड सरकार बेहद सतर्क हो गई है। समय रहते तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रखा गया है, अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। चलिए आगे रुक करते हैं, बात अब पंजाब की करेंगे। दरअसल पंजाब सरकार युवाओं को लेकर बेहद सजग नजर आ रही है, खासकर रोजगार को लेकर के, कौशल को लेकर। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के युवाओं को रोजगार, योग्यता और कौशल का सम्मान करने के उद्देश्य से रयात परिसर, रेल माजरा और उत्तरी क्षेत्र के पहले निजी तकनीक कौशल विश्वविद्यालय लेमेरिनटेक स्किल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता और व्यवहारिक कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से रेल माजरा के रयात परिसर में लेमेरिनटेक स्किल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, जो उत्तरी क्षेत्र का पहला निजी तकनीक कौशल विश्वविद्यालय है। चलिए आगे रुक करते हैं। पंजाब में आपको बता दें कि कू ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब के सीएम की तरफ से। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कू ऐप लॉन्च किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग कू ऐप को पंजाबी भाषा में लॉन्च किया गया है। स्वदेशी ऐप कू के पंजाबी संस्करण को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लॉन्च किया है। पंजाबी भाषा में लॉन्च होने के बाद अब लोग इस ऐप पर पंजाबी में भी पोस्ट कर सकेंगे। कू की स्थापना आपको बता दें कि मार्च 2020 में की गई थी और ये काफी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। इस ऐप पर लोग स्वदेशी भाषा में पोस्ट करते हैं
अपने लॉन्च के केवल 20 महीने की अवधि में कू ने 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें ज्यादातर यूजर्स सक्रिय रूप से हिंदी भाषा में पोस्ट करते हैं। वहीं अब पंजाबी भाषा में भी ऐप के साथ लोग अब जुड़ सकेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।